Thank you very much for having us today, for hosting us today. And I'm really not just saying it, but I'm really, really impressed with the company profile, with the work that you've done, with the groundbreaking innovation, with the futuristic manufacturing units, the factories that you've set up. I've seen it's unbelievable. Looks like a computer designed image. So very happy to see that. And I'm also happy to see that you take responsibility for not only providing sustainable alternative to people, but also looking after the planet, environmental friendly policies. So I really appreciate that. Thank you very much. And I'm glad to hear that you're already working in Pakistan. A lot of the people accompanying us, have Jinko installed in their houses, buildings, offices. I think if there is a need for you to venture out of Pakistan, instead of investing anywhere, I think the Pakistani market is very promising at the moment. It is huge, and the demand for solar is increasing by the day. We, as the Punjab government, are encouraging solar. We're also starting two projects where we are giving free solar panels to the users of 200 or less units. And from 200 to 500 domestic users, we are providing long-term loans with easy installments without interest for a huge, huge population, the population that consumes electricity from 200 to 500 units. And this is an upcoming project. We haven't yet started it, but we are working on it. It's almost finalized. We will be launching it soon, in a few weeks' time. And the key factors that you just enunciated, that you consider before venturing out of China, are stable bilateral relations that you just mentioned. As the people of China and the people of Pakistan know, that both countries have excellent bilateral relations and which have withstood the test of time, come what may. But this is like an ironclad friendship, an ironclad brotherly relation with this country. So I think nobody better than Pakistan, no country better than Pakistan has such a beautiful bond with China. China has also stood by Pakistan through thick and thin. And also, you mentioned cost of the energy. So cost of the energy power in Pakistan, electricity is coming down. And there is no dearth of workforce in Pakistan. We are a country of 200 point something million people. So workforces should not be a problem. Then we also have the infrastructure that is required for setting up a factory. We've got tax-free zones where we have all the facilities available, the enabling environment. And there is a growing energy demand in Pakistan, and solar is now becoming popular as an alternative. And a lot of people, I know for a fact, since I started two projects, so I have information. This is information-based thing that I'm telling you. In Pakistan, people are now moving to solar in a big way because of high energy costs that the government is now consistently trying to bring down. We are also combating environmental degradation, environmental challenges at the moment. And this also reduces our reliance on the fossil fuels, the burning of fossil fuels. And Pakistan has abundant solar resource. It's a country that has like sun all the time. As I just said, it's your fourth biggest market, as you said. I think it's high time that you set up a manufacturing unit in Pakistan. तो अगर इमरान खान साहब इसके ऊपर फाइनल कॉल देते हैं तो इसका लाजमन फ़र्क पड़ेगा। और हमें नज़र भी आ रहा है जिस तरह से हुकूमत इस वक्त डराने धमकाने में मसरूफ़ है, तो लगता है कि शायद इसका असर तो खैर पड़ रहा है। जनरल आसिम भी थे और जनरल फैज़ भी थे, मुझे दोनों में पर्सनैलिटी का बहुत फ़र्क है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ देयर ऑफिशियल फंक्शन मुझे कुछ खास फ़र्क इसलिए नज़र नहीं आया कि दोनों हजरात जो थे वो जनरल बाजवा की पॉलिसीज़ को परसू कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों के अंदर कोई खासा फ़र्क था। आधा तीतर आधा बटेर है। बहुत अच्छा होता कि अगर डीजीआईएसपीआर जो चार्जशीट की गई है, जो ब्लैक एंड व्हाइट एक लीगल पेपर होता है, वही शेयर कर देते तो ज़रा क्लैरिटी आ जाती कि असल में इल्ज़ामात क्या हैं जनरल फैज़ के ऊपर। जो परफॉर्मेंस होती है ना फैसल वाडा साहब की, वो तो इस तरह से है कि सुबह इनको एक गोली है पिंक रंग की और एक गोली है नीले रंग की। वो डिपेंड करता है कि सुबह उसको अपारे से कौन सी गोली खिलाई गई है। जिस रंग की उसने गोली खाई है, उस रंग का उसके ऊपर वो जनाब सारा दिन अमल दरामद होता है। लेकिन एंड ऑफ द डे देखिए बात ये है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन इमरान खान, क्योंकि इमरान खान जो हैं आज भी उनको ऑफर की जा रही है कोई ना कोई किसी किस्म की सेटलमेंट की इशू को सेटल, जिसमें मैं पहले भी बता चुका हूं, उनको नथिया गली जाने की ऑफर है, उनको केपी शिफ्ट करने की ऑफर है। उनसे टोटल जो चीज़ मांगी जा रही है वो 6 महीने मांगे जा रहे हैं कि आप 6 महीनों के लिए किसी हद तक खामोश होकर बैठ जाएं और सिस्टम को फिलहाल थोड़ा सा चलने दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। मोहतरम जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बैरिस्टर साहब 2-3 चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है रेमिटेंसेस के हवाले से और ओवरसीज पाकिस्तानी से जो अपील की है कि रेमिटेंस आपने नहीं भेजने, डू यू थिंक सो ये कन्वर्ट हो सकेगी एक स्ट्राइक में, एक प्रोटेस्ट में, हड़ताल में, और इसका इंपैक्ट पड़ेगा?
देखिए, फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि दो इसमें चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो फॉरेन रेमिटेंसेस या अब ज़र मुबादला कह रहे हैं, तो उसका टोटल सोर्स ऑफ इनकम इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फॉरेन रेमिटेंस ही है, क्योंकि कारोबार तो पाकिस्तान में कुछ हो नहीं रहा। एक्सपोर्ट आपके सामने है। आपकी एक छोटी सी आईटी की भी एक्सपोर्ट सर्विसेज थी, वो भी इंटरनेट की बंदिश की वजह से ख़त्म हो गई है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। मैं यहाँ बरतानिया में रहता हूँ। मुझे यहाँ पे 99% लोग जो हैं, जो मिलते हैं, वो प्रो पीटीआई इमरान खान साहब के साथ है, और उनकी हमेशा वही सवाल होता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगर इमरान खान साहब इसके ऊपर फाइनल कॉल देते हैं तो इसका लाजमन फ़र्क पड़ेगा। और हमें नज़र भी आ रहा है जिस तरह से हुकूमत इस वक्त डराने धमकाने में मसरूफ़ है, तो लगता है कि शायद इसका असर तो खैर पड़ रहा है। अच्छा, इसमें एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि ज्यादातर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं और फिर घर चलाने होते हैं, घर का खर्च भेजना होता है। इस चीज को कैसे देखा जाएगा, या इसके हवाले से क्या सोच ओवरसीज रखते हैं? जी बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त है कि दो तरह की रेमिटेंसेज हैं। एक तो वो जो आप कह लीजिए कि इन्वेस्टमेंट की सूरत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आती हैं, और दूसरी वो हैं जो स्पेशली हमारा मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं जो मंथली खर्चा भेजते हैं, तो वो खर्च चलता है। लेकिन वो छोटी अमाउंट्स होती हैं। अगर इसका रेमिटेंसेज के ऊपर ये कहने का फ़र्क अगर लेट्स से 50% भी पड़ गया, तो ये बहुत बड़ा डेंट होगा, बिकॉज आप ऑलरेडी डेफिसिट में हैं। मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि ये बिल्कुल इंतहाई कदम है, लेकिन अगर इमरान खान साहब उठा रहे हैं तो उससे इकॉनमी को बहुत शदीद दचका लगेगा। सर, अब जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से दीजिए। इस साहब की स्टेटमेंट है कि जनाब उनका बकायदा से उनके ऊपर फर्ज जुर्म आयद हो गई है। आपने भी जनरल फैज हमीद साहब के साथ काम किया हुआ है सर, उनके टेन्योर में? जी जी, मैंने तो जनरल फैज़ हमीद एंड जनरल आसिम मुनीर दोनों के साथ काम किया हुआ है, क्योंकि हमारे दौर में दोनों यके बाद दीगरे DGI रहे हैं। 8 या 9 माह जनरल की फैज मुद्दत। हमीद बतौर इंसान कैसे थे? आपने ज़रा बड़ा क्लोजली उन्हें देखा हुआ है, कैसे इंसान थे सर? देखिए, इंसान तो सब ही अच्छे हैं। एक इंसान वर्दी के अंदर होता है और एक वर्दी के बाहर होता है। मैं अब इसमें मजीद क्या कह सकता हूँ। मेरी नज़र में दोनों साहिबान जो थे वो प्रोफेशनली अपना काम कर रहे थे। जो जनरल आसिम भी थे और जनरल फैज़ भी थे, मुझे दोनों में पर्सनैलिटी का बहुत फ़र्क है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ देयर ऑफिशियल फंक्शन मुझे कुछ खास फ़र्क इसलिए नज़र नहीं आया कि दोनों हजरात जो थे वो जनरल बाजवा की पॉलिसीज़ को परसू कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों के अंदर कोई खासा फ़र्क था। अब अच्छा सर, जनरल फैज हमीद के ऊपर जो चार्ज फ्रेम किए गए हैं कि जनाब पॉलिटिकल इनकी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा थी, मुल्क के अंदर जो तहफुज है उसे इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, फिर माहौल भी पाकिस्तान के अंदर बड़ा खराब है, तो बड़ी सख्त किस्म के चार्जेस हैं जो उनके ऊपर लगाए गए हैं। बस योर टेक ऑन इट। सर देखिए, ये जो आज ISPR की प्रेस रिलीज आई है, ये मैं समझता हूँ ये एक तो बड़ी जो है मुहबम है। इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, ये मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा करती है। और ये बात मैंने आज की भी है, अपने व्लॉग में की है। और इसके साथ साथ ये देखिए, ये जो वजाहत चाहिए ISPR से कि आया जनरल फैज़ के ऊपर सियासत में मुदाखलत जो है वो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ DGISI है, या उनके ऊपर ये इल्ज़ाम जो है पोस्ट हिज रिटायरमेंट है। क्योंकि दोनों की मुख्तलिफ कॉनोटेशन है। क्योंकि अगर तो ये इल्ज़ाम उनके ऊपर ड्यूरिंग इस टेन्योर एज DGISI है, तो फिर तो आपके पास ऑन रिकॉर्ड दो गवाह मौजूद हैं। एक मौलाना फजल रहमान जो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से इकट्ठे मीटिंग हुई जिसमें उनको रजीम चेंज करने के लिए कहा गया। उस मीटिंग में ना सिर्फ मौलाना साहब ने बताया, मैं खुद मौजूद था, बल्कि उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के लोग भी थे। फिर दूसरी मीटिंग का हवाला जो है वो देते हैं आपके इन्हीं मतलब आज के जो लोग कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, उनके इमीडिएट बॉस वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, जो कह चुके हैं कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा दोनों मिलकर ही उन्होंने उनको ऑफर की थी हुकूमत बदलने की। तो इसका मतलब ये है कि ये गवाहियां तो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो फिर अगर तो उसके ऊपर चार्ज उस टेन्योर का है बतौर DGISI के, तो फिर ही वॉज परफॉर्मिंग हिज ऑफिशियल कमांड, क्योंकि वो कमांड तो जनरल बाजवा की थी। तो फिर अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है जनरल फैज़ का, तो वो इनकम्प्लीट होगा, बिकॉज जिस जिस अफसर ने जिसके वो मातहत थे, वैसे तो पेपर के ऊपर तो आप मातहत वज़ीर आज़म के होते हैं, लेकिन ऑन मतलब इन रियलिटी तो आर्मी चीफ की कमांड होती है। और गवाही भी आ गई कि आर्मी चीफ उस मीटिंग्स में मौजूद थे। तो एक तो ये क्लैरिटी नहीं है ISPR की स्टेटमेंट में। दूसरा ये है कि अगर पोस्ट रिटायरमेंट उनकी इन्वॉल्वमेंट थी इस किसी भी सियासी अमल में, तो ये भी क्लैरिटी नहीं है कि जब आप रिटायर हो जाते हैं, चलें अब एक हाजिर सर्विस है तो समझ आती है कि आपके पास पूरा लाओ लश्कर है। एक रिटायर्ड आदमी अकेला तो नहीं सियासत के अंदर मुदाखलत करके कोई नुकसान पहुंचा सकता ना। तो अगर पोस्ट रिटायरमेंट है, तो फिर इनके को अक्यूज कौन है? यानी कि देखें, अगर उन्होंने अपना फौजी कनेक्शन या कोई भी फौजी चीज़ इस्तेमाल की, तो इसके अंदर हाजिर सर्विस लोग ज़रूर होंगे। वो करना तो देखें ना, एक रिटायर्ड चार बंदे बैठ के जो मर्जी करते फिरें, अगर उनको इंस्टीट्यूशन से और ऑफिशियल दम से कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो तो मतलब एक किस्म की आपस में बातचीत ही कर सकते हैं ना। तो जी। लिहाजा अब इस सारी जो इस वक्त ये जो प्रेस रिलीज आई है, मैं ये समझता हूँ ये असल में एक प्रेशर टैक्टिक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको इस बात पे मगलूब करने के लिए कि उनकी टर्म्स मान ली जाएं। और जो आपने मुझसे सबसे पहले सवाल किया था कि जो रिमिटेंसेज और सिविल नाफरमानी वगैरह के मामले हैं,
उसमें वो पीछे हट जाएं। तो ये असल में एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे प्रेस रिलीज जारी हुई है। आधा तीतर आधा बटेर है। बहुत अच्छा होता कि अगर डीजीआईएसपीआर जो चार्जशीट की गई है, जो ब्लैक एंड व्हाइट एक लीगल पेपर होता है, वही शेयर कर देते तो जरा क्लैरिटी आ जाती कि असल में इल्जामात क्या हैं जनरल फैज के ऊपर। सर फिर उसके बाद हमने देखा कि टेलीविजन के ऊपर फैसल वाडा साहब आते हैं और उन्होंने तो आकर जानिए ऐसा महसूस हुआ कोई पता नहीं हमला कर दिया है, इमरान खान बर्बाद हो गया, अब ये तबाही निकल गई है, अब ये बंदा बचेगा नहीं। अगर फैज हमीद साहब शिकंजे में आ गए तो इमरान खान साहब भी आएंगे, तो कोई ऐसी सूरत खान के हवाले से, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, पहली तो बात है कि जो परफॉर्मेंस होती है ना फैसल वाडा साहब की, वो तो इस तरह से है कि सुबह इनको एक गोली है पिंक रंग की और एक गोली है नीले रंग की। वो डिपेंड करता है कि सुबह उसको अपारे से कौन सी गोली खिलाई गई है, जिस रंग की उसने गोली खाई है उस रंग का उसके ऊपर वो जनाब सारा दिन अमल दरामद होता है। तो अब वाडा साहब आज से कुछ 2 दिन कबल, पिछले 10 दिन के अगर आप उनको उठा के स्टेटमेंट दिखाएं, तो वो तो बार बार नून लीग के ऊपर हमला आवर थे और ये कहते थे कि मैंने इमरान खान को बचाना है और मैं चाहता हूँ इमरान खान बच जाए वगैरह वगैरह। अब आज उनको वो मतलब पिंक से हटा के नीली गोली पे डाल दिया गया है, तो नीली गोली खाने के बाद अब वो जनाब नीला तोता बक रहे हैं कि जनाब इमरान खान बर्बाद हो गया, अब ये हो गया वो हो गया। बेसिकली ये इस वक्त डराने की, जिस तरह से मैंने कहा ना, ये तमाम कोशिश जो है इमरान खान को डराने की है। और इस दफ़ा मुझे ये लगता है, मेरा ये एनालिसिस है कि थोड़ा सा ये टाइम कंस्ट्रेंट भी है इनको, क्योंकि 20 जनवरी से पहले पहले जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि किसी सूरत इमरान खान साहब से कुछ ना कुछ पैचअप हो जाए, ताकि फिर ये ना हो कि 20 जनवरी के बाद किसी और की टर्म्स के ऊपर इनको उनके साथ राजीनामा करना पड़े। अच्छा सर, ये वैसे मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ अखबार के अंदर भी एक तजिया पेश किया गया है, क्या ये मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन उनकी हल्फबर्दारी होगी उस दौरान भी इमरान खान के हवाले से कोई ट्वीट आ जाए, कोई सोच या फिर कोई इन्विटेशन आ जाए तहरीक इंसाफ की किसी अथॉरिटी या पर्सनैलिटी के लिए? देखिए, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है और इसका तमाम तर क्रेडिट इंडिविजुअल्स और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं, स्पेशली जो यूएस का चैप्टर है, उसको जाता है। और उन्होंने इस पूरी काम को, जिसका बेड़ा उठाया हुआ है, वो बहुत सारे लोग हैं। मैं किसी किसी के एक को भी नाम नहीं लेता, क्रेडिट नहीं देता, लेकिन काफ़ी हद तक इस वक्त जो नई कैबिनेट है ट्रंप की, तहरीक इंसाफ या इमरान खान से, अच्छा मज़े की बात है कि इसमें से बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ से ऑफिशियली भी वाबस्ता नहीं है। इमरान खान साहब का एक बड़ा हल्का अहबाब है जिसमें नॉन पाकिस्तानी भी शामिल हैं। और वो तमाम लोग ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसकी जो नई एडमिनिस्ट्रेशन कैबिनेट आ रही है, उससे मुसलसल राब्ते में हैं। और मैं नहीं समझता, देखें, इनविटेशन आना ना आना जो है वो एक अलग चीज़ है, वो इतनी रेलिवेंट नहीं है। असल चीज़ तो मैटर करती है कि 20 जनवरी के बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं तो वो उसके बाद क्या करते हैं। देखिए, इस तरह से एक चीज़ जहन में रखिएगा कि माजी में हमारे यहाँ जो रजीम चेंज का पूरा ड्रामा है, वो एक बड़े लो लेवल ब्यूरोक्रेट की नॉड से जो है वो पूरा कर लिया गया। तो इस दफ़ा भी यकीन जानिए कि हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम सदर के फ़ोन का इंतज़ार करेंगे। जब वहाँ से नॉड हुई तो मतलब तीसरी या चौथी सतह का कोई अफसर होगा जो शायद कैबिनेट मेंबर भी नहीं होगा, और उसके कन्वे करने से बहुत सारे मामला जो हैं वो सुधर सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे देखिए, बात यह है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन इमरान खान, क्योंकि इमरान खान जो हैं आज भी उनको ऑफर की जा रही है कोई ना कोई किसी किस्म की सेटलमेंट के इशू को सेटल, जिसमें मैं पहले भी बता चुका हूं, उनको नथिया गली जाने की ऑफर है, उनको केपी शिफ्ट करने की ऑफर है। उनसे टोटल जो चीज़ मांगी जा रही है वो 6 महीने मांगे जा रहे हैं कि आप 6 महीनों के लिए किसी हद तक खामोश होकर बैठ जाएं और सिस्टम को फिलहाल थोड़ा सा चलने दें। दूसरी जानिब एक और भी जो है, मैं समझता हूँ वो लॉलीपॉप ही मुझे नज़र आ रहा है कि जो कौमी हुकूमत की बात की जा रही है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, और उसके लिए फवाद चौधरी साहब ने भी एक बड़ा लंबा चौड़ा आज फार्मूला पेश किया है। वो फार्मूला वैसे सुनने को तो बड़ा दिलचस्प लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि उस फार्मूले में जो मुख्तलिफ लोग हैं वो शायद उसके टर्म्स के ऊपर एग्री नहीं करेंगे, और उस सबसे बड़ा सवालिया निशान फिर से इमरान खान साहब का ही होगा, क्योंकि शायद वो इस फार्मूले के ऊपर अमल के लिए तैयार नहीं होंगे। अच्छा सर, 6 माह का वैसे टाइम है, ये आप नहीं समझते कि खान को इसके ऊपर कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इमरान खान साहब को दिखानी चाहिए? अगर 6 माह की कोई ऐसी कोई स्टक हो जाती है, अगर ये क्राइसिस खत्म हो जाता है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक ये है कि हमारे जितने भी एनालिसिस या हमारे जो मशवरे होते हैं, मैं उनका एक करीबी मशीर भी रहा हूँ खान साहब का, और हमने हमेशा जो अपनी जो दानिस्त में या अपने तजर्बे से या अपनी वो अकल से जो भी उनको मशवरा देने की कोशिश की है, वो नॉर्मली ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर मबनी होता है और पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर मबनी होता है। इमरान खान की जो सोच है और उनकी जो अपनी स्ट्रेटजी है, वो नॉर्मली जो है वो बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इमरान खान रवायती सियासत का कायल नहीं है। जिस तरह से इमरान खान ने पिछले 2 ढाई सालों में इस्टेब्लिशमेंट को, फौजी इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया और हर किस्म के नैरेटिव में उसको शिकस्त दी, बावजूद इसके कि बड़े ही नामसाइद हालात थे। ये एक रवायती सियासत और पाकिस्तान के रवायती हालात से यकसर मुख्तलिफ है। इसी तरह से कि इमरान खान कैसे कैसे रिएक्ट और बिहेव करते हैं, वो भी मुझे लगता है कि मुख्तलिफ होगा। मैं आप हम जितने नॉर्मल लोग हैं, या कह लीजिए कि आम, हम अपने आप को आम लोग कहते हैं ना, तो हम आम लोग तो बिल्कुल यही कहेंगे कि यार चलें ठीक है, एक आपको एक वे आउट दिया जा रहा है, आप उस पर एग्री कर लें, एंड सियासत में बड़ा वक्त आगे भी चल के होता है। लेकिन इमरान खान साहब बेसिकली इस वक्त जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो दो चीज़ों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। एक, वो इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ रहे, और दूसरा वो अपने बाहर आने के लिए नहीं लड़ रहे।
उनका कहना यह है कि देखिए दो ऑप्शन है आपके पास। एक है कि आप जो हमारा छीना हुआ मैंडेट है 8 फरवरी का वो हमें वापस कर दीजिए, और जो अवाम ने अपनी विल दिखाई थी वोट के जरिए उसको तस्लीम कर लें। और उसका दूसरा जुज ये है कि जो फौज है, आईएसआई है, एमआई है, यानी कि जितनी भी फौज के इदारे हैं जिनकी डायरेक्ट मुदाखलत है इस निज़ाम को चलाने में या हुकूमत को चलाने में, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और इसका दूसरा हल ये है कि आप फिर दोबारा नया फ्रेश इलेक्शन करा लें जिसमें तमाम सियासी कैदियों को आज़ाद करा दें। क्योंकि इन इन दो तीन चीज़ों के अलावा अगर आप इमरान खान से बात करने की कोशिश करेंगे जिसमें ये चीज़ इन्वॉल्व होगी कि आप किसी जगह चुप करके बैठ जाएं, घर चले जाएं, बनी गाला बैठ जाएं, नथिया गली चले जाएं, वो उस बंदे का जहन ऐसा है कि उसने नहीं माननी है। दिस इज अ नॉन स्टार्टर। पीपल हु नो इमरान खान उनको पता है कि जब आप उस पर जाके किसी बड़े मकसद के लिए बात करेंगे, वहां पे अगर इमरान खान को कोई डिस्काउंट भी देना पड़ा, कोई उसको लचक भी दिखानी पड़ी, वो जरूर दिखाएगा। डू नॉट मेक इट अबाउट इमरान खान पर्सनैलिटी एंड इमरान खान पर्सन, कि उसके मुतलका नहीं आप जाए। आप उसके सामने एक इशू रखें जहां पे कुछ कुर्बानी आप दें, कुछ कुर्बानी उससे मांग लें। आप भी तो 2 कदम पीछे हटे ना। आपने भी तो बीड़ा उठाया हुआ है कि रोज 6 आयतें सुना के हमें कहते हैं कि जनाब हम फितना फिल अर्थ को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। तो थोड़े से 2 कदम आप पीछे जाएं, 2 कदम इमरान खान भी पीछे ले जाएगा। आप सियासी माहौल ऐसा बिल्कुल। बना दें, जो आपने बटेरे पाले हैं जरदारी और नवाज शरीफ की सूरत में, उनको भी मैदान में उतारें, इमरान खान को भी उतरने दें, फ्रेश इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन में करा लें, नया मैंडेट आए सबको। आप अपनी 5 साल की एक्सटेंशन ले चुके हैं, नए आने वाले वज़ीर आज़म को सलूट करें और काम को आगे चलाएं। असल में आगे सिर्फ बढ़े अच्छा इमरान खान से मांग। सर, शहजाद साहब, अब दो तीन क्विक सवाल हैं। सर, एक तो ये बताएं कि जो सिविल नाफरमानी या सिविल डिसोबीडियंस है, रेमिटेंस के हवाले से जो गुफ्तगू है, इसमें तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो क्लैरिटी के साथ नहीं आ रही, जो क्यादत यहां पर मौजूद है। और साथ साथ बैरिस्टर गुरैश साहब की आज की स्टेटमेंट कि जो एफआईआर डी चौक में कतलेआम हुआ था, एफआईआर सामने नहीं करवाएंगे बल्कि वाहिकीन की फैमिली जाकर करवाएं। सर, ये एफआईआर नहीं करवा पा रहे ना मोहसिन नकवी के खिलाफ ना शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, ये क्या वजह है इनकी ये कमजोरी क्यों है? देखिए इसको वैसे हम जब बचपन में पढ़ते थे इस्लामियात तो उसको ईमान की कमजोरी कहते थे लेकिन इस वक्त मसला ये है कि देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी भी इतला यही है कि तहरीक इंसाफ की जो जैली लीडरशिप है उसके अंदर कन्फ्यूजन है, और उन्होंने जाके इमरान खान साहब से बात भी की है कि जी ये इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि ये इस वक्त उनकी जो इसके ऊपर भी सोच है वो बिल्कुल वैसी है जैसे 24 नवंबर की कॉल के ऊपर थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिजर्वेशन थे कि ये कॉल अभी ना दी जाए। अब जो इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की दी है तो उसके लिए मेरी इतला ये है कि शायद कोई कमेटी बुलाई गई है जो वापस इमरान खान साहब को अपने तमाम जो रिजर्वेशन हैं वो बताएगी, और फिर उसके ऊपर बातचीत होने के बाद, और जमहूरी जमातों में होता है अगर लीडर का एक रिव्यू है और उसकी पार्टी के लोगों का दूसरा व्यू है, बातचीत करके जो भी फैसला होता है आखिर में वो फिर उस फैसले को माना जाता है। तो अभी तो मैं समझता हूँ कि ये सिविल नाफरमानी की जो है कॉल, इस पर मजीद कंसल्टेशन होनी है और शायद ये आने वाले दिनों में फर्म अप होगी। दूसरा, ये जो आप एफ आई आर का सवाल कर रहे हैं ये एक इंतहाई अफसोस की बात है। देखिए एफ आई आर तो मेरी ये अर्ज है, मैंने ये कुछ दिन पहले भी बात की थी कि एक बात तो गौहर साहब की कानूनी नुक्ता नज़र से ठीक है कि एफ आई आर जो है वो लवाकिन ही कराते हैं, लेकिन ये कोई 100% बात उस तरह से नहीं है। एफ आई आर जो है वो कोई भी शख्स करवा सकता है, लेकिन हमारे कानून में जो प्रेसिडेंट्स हैं वो ब्लड रिलेशन के होते हैं। लेकिन उनको डायरेक्शन जो है, उनको रास्ता तो दिखाना है आपके लोगों ने, जो आपकी पार्टी के अंदर है। तो अब होना ये चाहिए था कि एक दरख्वास्त ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जितना वक्त गुजरता जा रहा है आपका केस कमज़ोर होता जा रहा है। एक दरख्वास्त चाहे एक लवाहिकीन की तरफ से हो या सब की तरफ से यकजा हो, उसको अदालत में पहले आप पुलिस को देंगे, पुलिस अगर नहीं करती तो आप 22A का कानून है, आप जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने और कई दफ़ा उसमें सालों लग जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो एज सुन एज पॉसिबल आनी चाहिए। उसमें जो इस वक्त देरी दिखाई जा रही है वो ज़रूर मुनासिब नहीं है। अब हम किसी को क्या दोष दें, खान साहब चूंकि जेल में हैं, राब्ते का बहुत बड़ा मसला है, वगरना ये तो ऐसा काम है अगर इमरान खान बाहर होता तो ये एफ आई आर की एप्लीकेशन बमान लोगों को नॉमिनेट किए हुए कब की फाइल हो चुकी होती। सर, शाहिद खान अफरीदी साहब ने भी ट्वीट किया है डीजीआईएसपीआर साहब की प्रेस रिलीज के हवाले से, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ फर्जी जुर्मायत हो गई है। शाहिद अफरीदी सर ये तो क्रिकेटर थे, ये तो वो बॉल को चबाने वाले क्रिकेटर थे, ये अचानक से इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये शुरू हो गए। देखिए अब मसला ये है ना कि वो अब का क्या कहा जा सकता है। अब बहुत अरसे से कोशिश की जा रही है, कभी कहते हैं कि इमरान खान की जगह किसी क्रिकेटर को लॉन्च कर देते हैं या कहते हैं किसी और को कर देते हैं, तो ये मेरे ख्याल में तो एक इररेलेवेंट सी चीज़ है। इस मुल्क में मसला ये है कि आज अगर आप देख लें तो पिछले 72 घंटों में अनवर मकसूद साहब से माफ़ी मंगवा ली गई। वो एक और शायर हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बड़ी मशहूर हुई हुई एक नज़म कही थी, अ, अफकार अलवी, अफकार अफ्तार अलवी अलवी सर। साहब, उन उनसे भी आज माफ़ीनामा लिखवा लिया गया। और बस यही है। ये तो देखिए अभी कुछ दिन गुजरने दें तो यहाँ खरबूजे में से तरबूज और तरबूज में से खरबूजा निकला करेगा इंशाल्लाह। वन लास्ट कमेंट सर, अब आखिरी कमेंट मुख्तसरन आपका चाहूंगा। ये मुनीर फारूक साहब की स्टेटमेंट है जो कि आज कोर्ट हुई है। वो कहते हैं कि एक अहम शख्सियत के मुताबिक इमरान खान को अभी तक पता ही नहीं है कि उसका पाला किसके साथ पड़ा है।
ये अब मुनीब साहब को चाहिए कि वो पहेलियां बुझाने के बाद जिन आम शख्सियात के साथ उनके इतने करीबी राब्ते हैं तो उनका नाम भी दे दिया करें ना। वो जब आप यूनिवर्सिटी में कोई पेपर लिखते हैं जिसके लिए आप स्याको सबाक ना दे सकें तो वो पेपर रिजेक्ट हो जाता है। तो मुनीब साहब से दरखास्त है कि वो जिन अहम शख्सियतों के साथ बैठ के वो क़याम तवाम करते हैं उनका नाम भी ले दिया करें। सर वैसे आप जानते हैं खान को? क्या खान को पता है कि उसका किसके साथ पारा पड़ा? सर देखिए, असल प्रॉब्लम खान की नहीं है। उन जिन लोगों को ये लगता है उनको ये ज़रूर स्टडी करना चाहिए इमरान खान की पर्सनालिटी को, क्योंकि देखिए इमरान खान यहाँ पे है और बाकी तमाम पर्सनालिटीज़ ना स्क्रीन पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये इससे भी नीचे हैं। तो अगर उनको ये लग रहा है कि एक 3 साल के ओहदे वाले को लग रहा है कि एक शख्स जो पिछले 40 साल से एक आइकॉन है, एक इंटरनेशनल आइकॉन है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट 70s टिल 2024, एवरीवन इन द वर्ल्ड नोज इमरान खान। अब उसके बाद एक किसी नो मौलूद को लगता है कि उनको नहीं पता कि मेरा किससे वास्ता पड़ा है, तो फिर मैं यही कहूंगा कि दे नीड टू नो देयर एनिमी वेल। बहुत शुक्रिया शादाब अकबर साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए सर, थैंक यू। थैंक यू सर। के बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।